آغاز میں آپ کو بتائیں کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے شہیدوں کی نماز جنازہ کوئٹہ گیرجن میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وزیر داخلہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان شریک ہوئے۔ نماز جنازہ میں عسکری اور سویلین حکام نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کا کہنا ہے شہداء کی تدفین کے بعد آرمی چیف نے CMH کوئٹہ کا دورہ کیا، زخمیوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے کہا دہشت گردی کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا، دہشت گردی کے خاتمے کے مشن کو اجتماعی عزم کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے قوم کی مستقل حمایت کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کے خلاف قوم کا عزم مضبوط ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ بلوچستان پھر لہولہان، کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر خودکش دھماکے میں 26 افراد شہید ہو گئے، خواتین بچوں سمیت 60 سے زائد زخمی ہیں۔ حالات نارمل نہیں، بلوچستان میں جنگ کی صورتحال ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں FC کو اختیار دے رہے ہیں تاکہ دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکے، سیکیورٹی میں غفلت کی تحقیقات کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا نام نہاد قوم پرستی کے نام پر قتل کرنے والے ناراض بلوچ نہیں، دہشت گرد ہیں۔ انسانی حقوق کے چیمپئن ان حملوں کی مذمت کیوں نہیں کرتے؟ وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ نے سول اسپتال کوئٹہ میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ پوری وار کی سچویشن ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نارمل حالات ہیں۔ ٹھیک ہے، ویو آئی ہے، آپ کو ختم کر کے دکھائیں گے۔ اب ہم FC کو امپاور کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی لڑ سکیں۔ 4-5 اور خودکش حملہ ور پکڑے ہیں ہم نے پچھلے ایک ہفتے میں۔ فیڈرل گورنمنٹ اس ٹائم پہ ہر طریقے سے بلوچستان گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے بلوچ یوتھ کو خودکش بناتے ہیں؟ مذہب کے نام پر وائلنس ہے تو اس کو سب دہشت گرد کہتے ہیں۔ سو کال قوم پرستی کے نام پر جو دہشت گردی ہے اس کو ناراض بلوچ کہہ کے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹیررسٹ کو ایز اے ٹیررسٹ ٹریٹ کرنا چاہیے۔ جو یہاں ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں، وہ آج کدھر ہیں؟ آج کیوں نہیں اس واقعے کی مذمت کرتے؟ وی ہیو ٹو پروٹیکٹ ایچ اینڈ ایوری انچ آف دا اسٹیٹ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے بلوچستان حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ انہوں نے کہا دہشت گردوں کو اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا تھا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ اور حفاظتی انتظامات کے پیش نظر کوئٹہ سے ٹرین آپریشن 4 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ 11 سے 14 نومبر تک کوئٹہ سے ٹرین آپریشن معطل رہے گا۔ ترجمان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ بولان میل 16 نومبر کو کراچی سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ بولان میل 18 نومبر کو کوئٹہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ جعفر ایکسپریس 14 نومبر کو پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوگی۔ جعفر ایکسپریس 15 نومبر کو کوئٹہ سے دوبارہ روانہ ہوگی۔ تو حفاظتی انتظامات کے پیش نظر کوئٹہ سے ٹرین آپریشن کو 4 روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ 11 سے 14 نومبر تک کوئٹہ سے ٹرین آپریشن معطل رہے گا۔ بولان میل 16 نومبر کو کراچی سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہوگی۔ اس کے علاوہ بولان میل 18 نومبر کو کوئٹہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ جعفر ایکسپریس 14 نومبر کو پشاور سے کوئٹہ روانہ ہوگی۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن بم دھماکہ، اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کی مذمت۔ متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے گہری تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ امریکی سفارتخانے کا ایسا کہنا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا ثقافتی میلے میں شرکت، کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں دہشت گردی کے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ اگر کوئی مجھ پر تنقید کرتا ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں سیاسی ورکر ہوں، ہم کھلی کتاب ہیں، کوئی ڈیل نہیں کی۔ مزید بتا رہے ہیں پشاور سے نواب شیر۔ جی بالکل، پشاور میں ثقافتی میلہ اپنی تمام تر رنگینیوں اور رعنائیوں کے ساتھ جاری ہے، اور اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بھی میلے میں پہنچ چکے ہیں۔ ان سے بات کر دے اسٹیبلشمنٹ سے رابطوں کے بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں بھی بقوت کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہم ہیں کھلی کتابیں، چھپاتے وہ ہیں اپنے رابطوں کو کہ جنہوں نے کوئی ذاتی ڈیل کرنی ہو یا کوئی ذاتی فائدے لینے ہو۔ اپنی 2 حکومتیں ہم نے توڑ دی خود۔ اگر ہمیں حکومتوں کا شوق ہوتا کون حکومت توڑتا ہے اپنی؟ اسی طرح سسٹم میں جو مسائل تھے اس کو چیلنج کرنے کی وجہ سے ہماری AJK کی گورنمنٹ، ہماری GB گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی۔ اگر ہم کوئی بات چیت کریں گے بھی صحیح تو ہم اوپن کریں گے، کیونکہ ہم تو عوامی ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں، ہم تو عوام کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی ذاتی فائدہ تو ہمیں چاہیے نہیں۔ تو جو ہوگا سب کے سامنے ہوگا۔ ایسے صوبے میں جہاں پہ دہشت گردی سے لوگ زدہ ہوتے ہیں، پورے پاکستان سے مہمان آئے ہوئے ہیں، ایونٹس ہو رہے ہیں، یہاں بھی ہو رہے ہیں، وہاں بھی ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری عوام زندہ دل ہے، مقابلہ کرنے والی ہے،
और एक एतमाद है उनको हमारे ऊपर, हमारा अवाम पे एतमाद है, और मिल के हमने इन सब चैलेंज का मुकाबला करना है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब का यही कहना है कि हम सब चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा जो है वो तरक्की की राह पर गामजन है। जी, नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सदर बाइडन बुध को व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। सदर बाइडन ने फोन पर ट्रंप को मुबारकबाद और व्हाइट हाउस आने की दावत दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली से। जी जहांजेब, अपडेट कीजिए। जी देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंतखाबात जीते तो उनको सदर बाइडन ने टेलीफोन किया था और उनको मुबारकबाद दी थी और उन्हें व्हाइट हाउस आने की दावत दी थी ताकि जब इक़्तिदार की मुंतकिली का अमल है और वो शुरू किया जा सके। ये एक रवायत होती है कि जब भी इलेक्शन के बाद कोई एक नया सदर जीतता है तो सिटिंग प्रेसिडेंट उसको व्हाइट हाउस मदऊ करता है, लेकिन ट्रंप ने 2020 में ये रवायत तोड़ डाली थी क्योंकि वो नाराज थे, वो इंतखाबी धांधलियों के इल्ज़ाम आयद कर रहे थे और उन्होंने बाइडन को व्हाइट हाउस मदऊ नहीं किया था, ना ही उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत की थी। तमाम बाइडन ने इस रवायत को बरकरार रखा और बाइडन ने ट्रंप को दावतनामा दिया है। वो बुध को, आइंदा बुध को ओवल ऑफिस में सदर बाइडन ट्रंप से मुलाकात करेंगे और इक़्तिदार की मुंतकिली के हवाले से बातचीत होगी। ठीक है, बुध को ओवल ऑफिस में मुलाकात करेंगे। अपडेट करने के लिए शुक्रिया जहांजेब। और सदर आसिफ अली जरदारी दुबई से वतन वापस पहुंच गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी खुसूसी तैयारी के जरिए कराची पहुंचे हैं। बात करेंगे, संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए संजय। जी बिल्कुल, सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का दुबई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद पाँव में फ्रैक्चर हो गया था, जिसके बाद वो कुछ दिन उन्होंने दुबई में क़याम किया है। वहाँ पर उन्होंने बख्तावर भुट्टो जरदारी और अपने नवासों से मुलाकात भी की है, जिसके बाद आज सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी वतन वापसी पहुंचे। अब से कुछ देर पहले वो बिलावल हाउस पहुंच गए हैं। खसूसी तैयारी के जरिए वो कराची में एयर बेस पर उतरे थे, जहां पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के अंदर उन्हें बिलावल हाउस ले जाया गया है। पीपल्स पार्टी के जराये बताते हैं कि कल डॉक्टर उनका तिब्बी मुआयना करेंगे। अगर डॉक्टर्स ने इजाज़त दी तो आसिफ अली जरदारी अपनी मामूल की सरगर्मियाँ कल से दोबारा शुरू करेंगे। शुक्रिया संजय। लाहौर में मसनूई बारिश का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। स्मॉग में कमी के लिए शहर में 11 से 13 नवंबर तक मसनूई बारिश का मंसूबा था। महकमे मौसमियात ने अब कहा है शहर में बादल बनने की शरह 30% के करीब है। मसनूई बारिश के लिए 50% बादलों की मौजूदगी ज़रूरी है। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। स्मॉग में कमी के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से अहम शाहराहों पर रात के वक्त मैकेनिकल वॉशिंग एंड स्वीपिंग का अमल शुरू कर दिया गया है, जिससे वक्ती तौर पर स्मॉग में कमी होगी। मजीद बता रहे हैं यार मोहम्मद। शहर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी बदस्तूर सरे फहरिस्त है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंपनी की जानिब से बड़ा इकदाम किया गया है और नाइट शिफ्ट जो है वो यहाँ पे मैकेनिकल स्वीपिंग और मैकेनिकल वॉशिंग कर रही है सड़कों की। जेल रोड, मॉल रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड, इसी तरह MM आलम रोड और फिरदौस मार्केट चौक समेत दीगर अहम शहरात हैं जहाँ पे नाइट शिफ्ट के दौरान जो मैकेनिकल स्वीपिंग है और मैकेनिकल वॉशिंग की जा रही है। जो बारिश बरसाने वाला हुकूमत की जानिब से मसनूई बारिश बरसाने का प्लान था वो कुछ अभी ताख़ीर का शिकार हुआ है कुछ मामलात की वजह से। ताहम जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एंड कंपनी की जानिब से ये एक अच्छा इकदाम किया गया है कि वक्ती तौर पे इस वॉशिंग से, स्वीपिंग से जो स्मॉग के असरात हैं वो कम दिखाई देते हैं। तो ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। फैसलाबाद में भी स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। शहरियों का सांस लेना दुश्वार। नाक, कान, गले और फेफड़ों की बीमारियों में इजाफा हो गया। रिपोर्ट करें मोहम्मद काशिफ। खबर है कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले से मुताल्लिक कलअदम BLA ने दहशतगर्द मोहम्मद रफीक बजिंजो की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। कलअदम BLA के दहशतगर्द की सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीर का फॉरेंसिक ऑडिट हुआ। तस्वीर में दहशतगर्द सर से पांव तक गैर मुल्की असलहा और सामान से लदा है। तस्वीर में दहशतगर्द ने अमरीकी साख्त के M4 राइफल उठा रखी है। अमरीकी साख्ता M4 राइफल अफगानिस्तान में डॉलर से खरीदी जा सकती है। दहशतगर्द ने जो यूनिफॉर्म पहन रखा है वो भी US मेरीन कोर का है। तस्वीर में गोलियां, मैगजीन, जैकेट और टोपी भी अमरीकी साख्त की है। रॉ के मुहैया किए जाने वाले डॉलर से कलअदम BLA ये साजो सामान खरीदती है। कलअदम BLA साजो सामान अफगानिस्तान से खरीदकर मासूम पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रही है। कौम को फॉरेन फंडेड दहशतगर्दों के कलाकमा के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ चलना होगा।
कलअदम BLA ने दहशतगर्द मोहम्मद रफीक बजिंजो की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है और इस तस्वीर का फोरेंसिक ऑडिट भी हुआ है, जिसमें ये देखा जा सकता है इस तस्वीर में कि दहशतगर्द से पासर से पांव तक गैर मुल्की असलहा और सामान से लदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं नवंबर में बानी PTI कॉल देने वाले हैं, सर पर कफन बांध कर निकलेंगे चाहे जान चली जाए। बानी PTI को रिहा करा के घर वापस आएंगे। स्वाबी में जलसे से खिताब में बोले कुर्बानी के बगैर आज़ादी नहीं मिलती। चेयरमैन PTI गौहर खान ने कहा बानी PTI की रिहाई का वक्त करीब आ गया है। असद कैसर बोले फैसिस्ट हुकूमत के खिलाफ अब निकलना होगा। शेख वकास अकरम ने कहा बानी PTI ने बता दिया हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। महीने में इमरान खान हमें कॉल देने वाला है। वो कॉल ये होगी कि हम जब घरों से निकलेंगे तो अपने घर वालों को बता के निकलेंगे कि अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम इमरान खान को रिहा नहीं कराएंगे। चाहे जेलों में चले जाएं, चाहे मर जाएं, लड़ेंगे, मुकाबला करेंगे। तैयारी शुरू कर दो। सर पे एक सफेद चादर, जो चादर भी है, इज्जत भी है और कफन भी है, ये लेके निकलना। हर सूरत खान साहब आजाद होंगे। खान साहब की रिहाई बहुत करीब है। आपके लिए लाजिम है कि आप खान साहब की आजादी की बात करेंगे। हम इस मर्तबा खान साहब की आजादी के लिए निकलेंगे। इस फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम को निकलना होगा। खान साहब का आज बयान आया है और खान साहब ने कहा है हमारा एहतजाज किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर उसकी क़यादत के अंदर फासला पैदा करने की कोशिश की जा रही है। लंदन में काजी फाइज ईसा के खिलाफ एहतजाज का मामला 23 पाकिस्तानियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिए गए। ज़राए का कहना है PCL में लंदन मुजाहिरों में पेश शायान अली, मलाइका बुखारी, सादिया फ़हीम, फ़हीम गुलजार, माहीन फैसल, सिद्रा तारिक, हिबा तारिक समेत दीगर नाम शामिल हैं। तमाम अफराद की हवालगी के लिए बरतानवी हुकाम को ख़त भी लिख दिया गया। पाकिस्तान लाए जाने की सूरत में इन अफराद को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर सियासतदान जाहिद खान ने ANP छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से मुलाकात करके नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगे। सर्दियों में गैस की जगह बिजली इस्तेमाल करें। वज़ीर तवानाई का आवाम को मशवरा। कहा बिजली सस्ती होने से घरेलू और सनती सार्फिन को फ़ायदा होगा। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। NTDC की वजह से तरसीली निज़ाम दुरुस्त नहीं था। NTDC को 3 कंपनियों में तकसीम किया जाएगा। पाकिस्तान की सनतों को, आम एक सारिफ को, दुकानदार जो ट्रेडर्स हैं 26 रुपए फी यूनिट सहूलत पैकेज है ताकि सस्ती बिजली से हमारी मुआशी एक्टिविटी शुरू हो, गैस के इस्तेमाल के बजाय बिजली की तरफ शिफ्ट हो। यही पैकेज हर साल 6 महीने के लिए लेके आए। NTDC माजी में बहुत बद इंतजामी का शिकार रहा। अब ये फैसला किया गया है कि 3 मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर तकसीम किया जाएगा। इस्लामाबाद अदबी मेला दूसरे रोज में दाखिल हो गया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। नवंबर की खुनकी में इस्लामाबाद वालों को गंधारा सिटीजन क्लब में जारी अदबी मेले की सूरत एक खूबसूरत बैठक मुयस्सर आ गई है, जहां शुरका को एक ही छत तले अंग्रेजी और उर्दू अदब की मुख्तलिफ असनाफ के साथ साथ सियासत, सकाफत, मईशत और हालात हाजरा से मुतल्लिक बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल रहा है। नामवर शोरा, अदीब और दानिश्वरों समेत फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत मेले को 4 चांद लगा रही है। इकराम मजीद सहगल साहब की टॉक में शिरकत की है। अभी अंदर पंजाबी मुशायरा चल रहा है, अभी थोड़ी देर तक हम वहाँ पे जाएंगे और शाम को उर्दू है। ये 3 चीज़ें हैं जिसमें हम शिरकत करेंगे। किताबें पढ़ने का रेशियो ही देखा जाए तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 10 में से 2 लोग भी जो है किताब नहीं पढ़ते, और किताबों से दूरी की वजह वही हमारी ज़हनी पसमानदगी है। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली और जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा होने चाहिए फेस्टिवल्स इस तरह के। अदबी मेला अपनी तमाम तर रौनकों के साथ अब इख्तितामी मरहले में है। इस हसीन मेले की खुशगवार यादें जहनों में सजाए इस्लामाबाद वालों को इस जैसी खूबसूरत तकरीब के लिए अब सारा साल इंतजार करना होगा। कैमरामैन यासर अली खान और मुबशर नजर के साथ जहांगीर खान, ARY न्यूज़, इस्लामाबाद। करतारपुर राहदारी के 5 साल मुकम्मल हो गए। करतारपुर में राहदारी की 5वीं सालगिरह पर भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू की आमद भी मुतवक्के है। मरकजी तकरीब 19 नवंबर को होगी।
करतारपुर राहदारी की 5वीं सालगिरह पर यात्रियों की कसीर तादाद दरबार पहुंचेगी। यात्री दरबार गुरु नानक पर माथा टेकेंगे, केक भी काटा जाएगा। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨੀ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਣ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ है। करतारपुर राहदारी सिख यात्रियों के लिए बाबा गुरु नानक के दरबार पर हाजिरी के साथ साथ अदब, सकाफत और रिश्तों को मिलाने का सबब भी बन रही है। करतारपुर राहदारी सिख बरादरी के सबसे काबिल एहतराम मजहबी मकामात में से एक तक रसाई की दरीना ख्वाहिश पूरी करती है। और भारत की हट धर्मी बरकरार। नई दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस हुई। भारत का पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को शिरकत के लिए वीज़ा ना देने से इनकार। बात करेंगे मोहम्मद सलाहुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। आगाह कीजिए सलाहुद्दीन। देखिए, बिल्कुल भारत की हटदर्मी बरकरार है। भारत ने पाकिस्तान के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को दिल्ली में इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वीज़ा नहीं दिया है। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस 9 था 11 नवंबर को नई दिल्ली में मुनक्कद हो रही है। पाकिस्तान के 3 रुकनी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वक्त ने नई दिल्ली कॉन्फ्रेंस में शिरकत करना थी। पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वक्त ने नई दिल्ली जाने के लिए चंद हफ्ते कबल वीज़े के लिए दरख्वास्त दी थी। भारत ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को वीज़ा जारी नहीं किया गया। वीज़ा न मिलने के बायस पाकिस्तान का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स का गिल्ड भारत कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए नहीं जा सका। जी, आपका शुक्रिया सलाहुद्दीन। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।